ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند برتر ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کے مثل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گناگو خصوصیت کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکیں۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہے۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریش یا کرسی کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی غلوب نہیں ہوتا۔ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خوددادہ طاقت کی بنا پر تمام قبیلہ عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فدیت بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں رسید بنا کر حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ ان دنوں سے لوگ ان کو ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد معاف کے سب لڑکوں میں بڑے اور با صلاحیت تھے، اس لیے عبد معاف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجاد نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وسیع تھے۔ جب سننے شعوبر پر پہنچے تو ان کی شادی مدینے میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینے ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پار ملک شام کے راستے میں بم کام گنزا انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینے ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7-8 سال کے ہو گئے تو مکہ مکرمہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نسب اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں اپنا کھانا پانی لے جایا کرتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور انور آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چوروں کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے اور اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوانا شروع کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبے کے متولی اور سجاد نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن میں دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھون کر گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر میں پیخانہ پھر کر اس کو نجاست سے تلپت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے والوں نے مکے پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے والوں نے مکے والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے مویشی چھین لیے، جس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا
सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद मकाम रुआबदार और निहायत ही हसीन जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरगूब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीम तौकीर के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया, कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह आपके लश्कर के सिपाही हाक लाए हैं, आप उन मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसला बुलंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़र में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़फोड़ करके बर्बाद करने आया हूँ। आपने इसके बारे में कुछ गुफ्तगू ही नहीं की, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, वो खुदा का घर है, खुदा अपने घर को खुद बचा लेगा, काबे की जरा भी मुझे फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा ने अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूहे जमीन से उसका नाम और निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मुस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल और मवेशियों को लेकर मक्के से निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ और दराजों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खानाए काबा पर गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर बेइंतहाई बेकरारी और गिरिया वजारी के साथ बारगाहे बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम गुमगास में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा, बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोचों और परों में तीन तीन कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरमैन काबे की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इस दल के दल लश्करों ने अब्राहा के फौज पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि जान की जान अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी खुदा वंदे कहर व जब्बार का कहर गजब की ऐसी मारा मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो आदमियों के बदन को छूती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहा और उसके हाथी सब इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनकी जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गयीं। चुनाचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदा बंदे ताला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है कि ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला और उनके वादों को तबाही में न डाला और उन परिंदों की टुकड़ियों को भेजा ताकि उन्हें कंकर के पत्थर से मारे तो उन्हें चबाए हुए भुज जैसा बना डाला। जब अब्राहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया और उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया। तमाम अहले अरब उनको खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिले एहतराम समझने लगे। हजरत अब्दुल्ला, ये हमारे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। ये अबू तालिब के तमाम बेटों में से सबसे ज्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे, क्योंकि उनकी पेशानी में पूरी मोहम्मदी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवागार था। इसलिए हुस्नो खूबी के पैकर और जमाले सूरत व कमाले सीरत के आईनादार और इफ़्फ़त व परहेजगारी यकताई में रोजगार थे। कबीलाए कुरैश की तमाम हसीन औरतें उनके हुस्न व जमाल पर फरे फतह और उनसे शादी की ख्वाहिशगार थी, मगर अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ
हस्बो नस्बों की शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज़ हो अजीब इत्तेफाक की एक दिन अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तशरीफ लाए। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामातों से पहचान गए थे नबी आखिरी ज़मां के वालिद माजिद यही हैं। चुनाचे इन यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को बहरहाल कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मर्तबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात मुसल्लत होकर इस नियत से जंगल में गए कि अब्दुल्ला को तन्हाई में धोखे से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत ने इस बार भी अपने फजल करम से बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसे सवार नागहा नमूदार हुए जो इस दुनिया के लोगों से कोई मुशाबत नहीं रखते। इन सवारों ने आकर यहूदियों को भगाया और अब्दुल्ला को बाहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। वहाब बिन मुनाफ भी उन दिनों जंग में थे और उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, इसलिए उनको अब्दुल्ला से बेइंतहा मोहब्बत व अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अर्ज किया कि मैं अपनी नूरे नज़र आमिना की शादी अब्दुल्ला से करूँगा। चुनाचे अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के जरिए से उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा दिया। खुदा की शान, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने नूरे नज़र अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे वैसी खूबियाँ हजरत आमिना बिनते वहाब में मौजूद थी। अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनाचे 24 साल की उम्र में हजरत बीबी आमिना से निकाह हो गया और नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत बीबी आमिना के शिकम अथर में जलवगर हो गया। और जब हमल शरीफ को 2 महीने पूरे हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को खजूरें लेने के लिए मदीना शरीफ भेजा या तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना किया। वहां से वापस लौटते हुए मदीने में अपने वालिद के ननिहाल बनु आदि बिन नजार में 1 माह बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में वफात पा गए और वहीं दारे नबागा में मदफन हुए। काफले वालों ने जब मक्का वापस लौटकर अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला की बीमारी का हाल सुनाया तो उन्होंने खबरगिरी के लिए अपने सबसे बड़े लड़के हारिस को मदीना शरीफ भेजा। उनके मदीना पहुंचने से कल ही हजरत अब्दुल्ला राही मुल्के बका हो चुके हैं। हारिस ने मक्का वापस होकर जब वफात की खबर सुनाई तो सारा घर तमाम कदा बन गया। खुद हजरत आमिना ने अपने मरहूम शौहर का ऐसा पुरदर्द मरसिया कहा कि जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भर जाता है। रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला की वफात पर फरिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ कहा कि इलाही तेरा नबी अब यतीम हो गया। हक ने फरमाया क्या हुआ, मैं इसका हामी व हाफिज हूँ। हजरत अब्दुल्ला का तरका एक लौंडी उम्मे ओमन जिसका नाम बरका था, कुछ ऊँट कुछ बकरियाँ थीं। ये सब तरका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिला। उम्मे ओमन बचपन में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देखभाल करती थी, खिलाती, कपड़े पहनाती, परवरिश की पूरी ज़रूरियात मुहैया करती। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम उम्र उम्मे ओमन की दिलजोई फरमाते रहे। अपने महबूब व मुदबाना गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा से उनका निकाह कर दिया और उनके शिकम से हजरत उसामा पैदा हुए।